أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی کبریائی اور اختائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا یوراب کا اور تمام مخلوقات کا خالق و حقیق. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کی تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے جو روایت صحیح بخاری کی ہے اور روایت کے راوی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آیت اور روایت کے مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نماز کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ایسے ہی ہم سے اور آپ سے نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری نماز ادھوری اور ناقص رہ جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی. یہ بات یاد رہے کہ غلطیوں کا ذکر جہاں نماز کے اندر ہوتا ہے وہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ میری کمیاں میری غلطیاں نکالی جا رہی ہیں، بلکہ سننے والا جس طریقے سے اپنی نمازوں کی اصلاح کا طلبگار ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، کہنے والا اس سے کہیں زیادہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے. تو بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ہو رب العالمین ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جسے عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور جتنی بھی عبادات ہیں ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں انسانی بدن کا پورا وجود مصروف رہتا ہے. آپ کا ہاتھ مصروف ہے، آپ کا پیر مصروف ہے، یہاں تک کہ دل دماغ آپ کا مصروف ہے، یہاں تک کہ گھٹنے آپ کے مصروف ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز مصروف ہے. تو گویا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا پورا وجود پورا بدن مصروف رہتا ہے اور یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نماز کو فرض کرنے کے لیے بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں لیا ہے. سارے احکامات اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک فرشتہ لے کر کے آتا تھا جسے جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو فرض کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سواری بھیج کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلانے کے بعد وہاں پر اس نماز کو فرض کیا ہے. تو یہ بڑی اہم عبادت ہے اور اسی طریقے سے آپ جانیں گے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کا کل قیامت کے دن مرنے کے بعد سب سے پہلے کسی کا حساب ہوگا. حضرت
हुरैब बिन कबीसा एक ताबई है, मशहूर ताबई है। वो कहते हैं कि मैं मदीना आया, तो मदीना जब पहुंचा तो मैंने दुआ की। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी जलीसन सालिहा, मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, तुम मदीने के अंदर मुझे एक नेक साथी से मुलाकात करा दे, मुझे तौफीक दे कि एक नेक साथी मुझे मिल जाए, मैं उससे मुलाकात करूं। हरीब बिन कुबैसा कहते हैं कि जब ये दुआ मैंने किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से करवा दिया। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, सबसे ज्यादा हदीसों के जानने वाले, सबसे ज्यादा अहादीस को रिवायत करने वाले। 5374 रिवायात इनसे मरवी हैं अहादीस की किताबों में। तो इनसे जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद हुरैरा बिन कबीसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा कि ऐ अबू हुरैरा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी जलीसन सालिहा, और अल्लाह ने वो नेक साथी के तौर पर तुम्हें चुन करके उसकी मुलाकात करा दी है। लिहाजा आप मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस बयान कर दें जिस हदीस से मैं फायदा उठा सकूं। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हरीब बिन कुबैसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने पास बैठाया, और बैठाने के बाद जो हदीस सुनाई वो हदीस हमारे और आपके लिए है, हमारे और आपके लिए हदीस है। वो हदीस क्या है? अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामा सलातुहु, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो बंदे से लिया जाएगा उसके आमाल के ताल्लुक से वो उसकी नमाज होगी, सबसे पहला हिसाब ही होगा। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वइन सलुहा साइरु अमली, अगर नमाज में इंसान पास हो गया तो बाकी सब में पास हो जाएगा। वइन फसदत खाबा व खसिरा, लेकिन अगर नमाज का मामला ठीक न रहा तो फिर इंसान के लिए उसके बाद नुकसान ही नुकसान है। खाबा व खसिरा, बर्बाद हो गया वो आदमी, वो नुकसान में पड़ गया वो आदमी। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें और आपको गौर करना है, सोचना है, तफक्कुर करना है, तदब्बुर करना है, हमारी अपनी नमाजों का क्या मामला है, हमारी अपनी नमाजों का क्या मामला है। इस हवाले से हमें और आपको सोचना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए, सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं ये हमारी नमाजें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हैं या मनमानी है, जैसे चाहा उठा बैठे मार लिया, जैसे चाहा सजदे में चले गए और उसके बाद उठा बैठे मार करके 9-11 हो गए, या हमारी नमाजें किसी मखसूस मसलक के मुताबिक है। मेरे भाइयों, हमसे जो मुतालबा है, शरीयत का जो हमसे मुतालबा है वो नमाज नबवी का है, नमाज मोहम्मदी का है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस तरह से पढ़ के बताया है वो हमें जानना चाहिए, सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। हजरत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि चंद नौजवान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ लाए। मैं भी उन चंद नौजवानों में एक मैं भी था। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हमारा क़याम रहा 20 दिनों तक क़याम था। और इस 20 दिनों के क़याम में हम जब तन्हाई में बैठते थे तो चूंकि नौजवान थे और नौजवान होने की वजह से घर वालों का तस्करा ज्यादा करते थे, बीवी बच्चों का तस्करा ज्यादा होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को भांप लिया, और भांपने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अपने घर वालों के बारे में मालूमात हासिल किया। चूंकि आप बहुत नरम दिल थे, बहुत रहम दिल थे, बड़े नरम मिजाज थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरजिउ इला अहलिकुम फअल्लिमुहुम वमुरूहुम वसल्लू कमा रअयतुनी उसल्ली, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुम अपने घरों को वापस चले जाओ, जब वहां जाओ तो तमाम लोगों को नमाज का तरीका सिखाओ, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेकिन याद रखो नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे तुम लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। अब यहाँ पर आप देखें
देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब चंद नौजवानों को है, चंद नौजवानों को आपने मुखातब किया है, लेकिन मुराद पूरी उम्मत है, मुराद पूरी उम्मत है। पूरी उम्मत के लिए तालीम है कि वो आदमी नमाज पढ़े रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, और नमाज ही नहीं, जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान को सोचना चाहिए कि हमारा तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो। अल्लाह कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, जो उम्मीद रखता है आखिरत का और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत से जिक्र करो। बहरहाल ये हमको और आपको और हर बंदे को सोचना ये होगा कि नमाज हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, उससे हट करके ना हो। उसके अलावा नमाज का तरीका क्या है, उससे पहले जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मस्जिद में दाखिल हो जाने के होते वक्त या मस्जिद में आते वक्त हमें चंद चीजों का और लिहाज रखना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि हमें ध्यान देना होगा अपने लिबास पर। लिबास हमारा कैसा हो, लिबास हमारा मुकम्मल सातिर हो, मुकम्मल सातिर होना चाहिए हमारा लिबास। सातिर का मतलब ये होता है कि इंसान का जो सतर है उसे मुकम्मल तौर से कपड़ा ढांकने वाला हो, ना तो ऊपर से बेहयाई का मुजाहरा हो और ना ही दूर से बेहयाई का मुजाहरा हो। कपड़ा इस अंदाज का हमारा होना चाहिए। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फैशन के नाम पर, मॉडर्न तहजीब की बुनियाद पर, और ये बात याद रखना चाहिए नौजवान खासतौर से सुने कि किसी भी कौम का कल्चर और तहजीब को इख्तियार करना ये निशानी तरक्की याफ्ता लोगों की नहीं होती है। ये निशानी है मरगूबियत की, मतलब आप अपनी तहजीब से मुतमईन नहीं है, इसलिए दूसरों की तहजीब को अपनाने पर मजबूर हैं, ये मरगूबियत है। लिहाजा इंसान को, लिहाजा मुसलमान का एक कल्चर है, उसकी तहजीब है, उसकी सहाफत है, किसी भी सूरत में उसे मरगूब नहीं होना चाहिए। तो सतर के हवाले से मैं बात कर रहा था कि हमारे बहुत सारे नौजवानों का कि शर्ट या टी शर्ट इतनी छोटी होती है, इतनी मुख्तसर होती है कि अगर वो रुकू में चले जाएं तो खिंचाव पैदा होता है शर्ट में, सजदे में चले जाएं वहां पैंट पर खिंचाव पड़ता है, और पैंट पर खिंचाव पड़ जाने की वजह से पैंट और टी शर्ट के बीच में जगह खाली हो जाती है। आदमी वहां पर इंसान का सतर खुल जाता है, और आप याद रखें कि अगर सतर खुल गया तो फिर हमारी नमाज बातिल हो जाती है। सतर ये नमाज के लिए बुनियादी शराइत होती है। लिहाजा कपड़े हमारे कुशादा होना चाहिए, नमाज हमारी बातिल ना होने पाए। दूसरी बात यह है कि जुमा की नमाज से थोड़ा सा हट करके अगर हम गुफ्तगू करें तो बहुत सारे अहबाब हम में से ऐसे होते हैं जो मेहनत कश होते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, उनका बदन पसीने से शराबोर होता है, और उसी हालत में वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले आते हैं। वो कि वो नापाक नहीं है, नापाक नहीं है, वो नमाज उनकी हो जाती है, मगर उनके पसीने की बदबू से दूसरे लोगों को तकलीफ होती है, और ये आदाब मजलिस के खिलाफ है। इसलिए कि जिस चीज से इंसानों को तकलीफ पहुंचती है उसी चीज से, उसी बदबू से फरिश्तों को भी तकलीफ पहुंचती है। लिहाजा कभी भी आदमी का कपड़ा पसीने में लटपट हो, मैला कुचैला हो, गंदा हो, बगैर सफाई सुथराई किए हुए आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ना आए, बल्कि सफाई सुथराई करने कायदे से, ताकि जाने के बाद, मस्जिद में जाने के बाद उसके पसीने की बदबू से दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द हैं, उनका नाम है नाफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलवत में, तन्हाई में नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ रहे थे तो कैसा पढ़ रहे थे, एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको देखा, तो देखने के बाद कहा, है नाफे जरा इधर आओ। आए, कहा ये बताओ कि जिस कपड़े में तुम नमाज पढ़ रहे हो
क्या इस कपड़े में बाजार में जाना पसंद करोगे? बाजार में जाना इस कपड़े में पसंद करोगे? कहा नहीं, कतई नहीं। कहा जब बाजार में तुम जाना नहीं पसंद करोगे तो तुम जो खड़े हो किसके सामने खड़े हो? अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़े हो, बादशाहों के बादशाह के सामने खड़े हो। लिहाजा हर मुसलमान को कपड़े के हवाले से ये बात याद रखना चाहिए। कुरान का हुक्म है हुजूर ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, जीनत इख्तियार करो हर नमाज के वक्त। हर नमाज के वक्त मैले कुचैले कपड़े नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो कपड़े के हवाले से हमें और आपको याद रखना चाहिए, वो तीसरी बात यह है कि हमारा कपड़ा, हमारा पैजामा, हमारा सलवार, हमारी पैंट टखने से नीचे ना होने पाए। टखने से नीचे ये औरतों को हुक्म है, मर्दाना शान ये नहीं है। मगर आप देखेंगे कि जो नया फैशन आया है उस नए फैशन में मर्दों का कपड़ा टखने से नीचे और औरतों का कपड़ा टखने से ऊपर। ये फैशन के नाम पर जितने काम शरीयत में रोके हैं वो सब फैशन के नाम पर अंजाम दिए जाते हैं। लिबास के मामले में इंसान को इस्लामी लिबास को मलहूज रखना चाहिए। इस्लाम ने किसी लिबास को तय नहीं किया है। आदमी कुर्ता पैजामा पहने, आदमी पैंट शर्ट पहने, आदमी तहबंद कुर्ता पहने, तहबंद कमीज पहने, किसी भी लिबास की कोई पाबंदी शरीयत में नहीं की है। शरीयत ने शर्त लगाई है कि इंसान जो लिबास पहने वो उसके बदन को ढांकने वाला हो, सतर को छुपाने वाला हो। लिहाजा ऐसे लिबास का इख्तियार करना चाहिए, ऐसे लिबास को इख्तियार करना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने पैजामे सलवार को टखने से नीचे करते हैं, घसीटते हुए चलते हैं जमीन पर, याद रहना चाहिए कि ये मामूली जुर्म नहीं है। ये मामूली जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला रजुलिन ला यंजुरुल्लाहु इला सलाति रजुलिन यजुर्रु इदारहु बकरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी की नमाज की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखता जो आदमी तकब्बुर की बुनियाद पर अपने कपड़े को टखने से नीचे घसीटते हुए चलता है, और टखने से नीचे भी नहीं घसीटना है। और याद रहना चाहिए कि नीचे से फोल्ड भी नहीं करना है। नीचे से फोल्ड करना ये भी नापसंदीदा है, ये शरई अमल नहीं है। लिहाजा पैंट को काटो, सलवार को काटो और इतना छोटा बना करके रखो कि वो टखने से ऊपर रहे। वरना याद रखें कि बतर के तौर पर, किब्र के तौर पर एक कौम थी, एक शख्स था जो अपने कपड़े को जमीन पर घसीटते हुए चल रहा था। रब्बुल आलमीन ने उसे जमीन में धंसा दिया था। रब्बुल आलमीन ने उसे जमीन में धंसा दिया था। लिहाजा किसी भी सूरत में ये चीज जो है पसंदीदा नहीं है। हाँ, ऐसा आदमी जो कपड़े को, तहबंद को छोटा पहनता है, कपड़े के ऊपर पहनता है, लेकिन पेट की वजह से निकल गया है, सरक करके नीचे चला जाता है, जाहिर है कि उसकी गुंजाइश शरीयत में रखी है। लिहाजा मर्द को सतर का लिहाज रखना चाहिए। इसी तरीके से खवातीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब करके कहा, क्या मुखातब करके कहा? ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइदिन इल्ला बिहिमार। कोई भी औरत जो बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए, कोई भी औरत जो बालिग हो जाए, अगर वो बगैर दुपट्टे के नमाज पढ़ती है, उसकी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता है। लिहाजा दुपट्टा भी रहे, दुपट्टा गाढ़ा भी रहे कि बाहर से उसके बाल दिखाई ना देते हों। और ये बात याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से नमाज की हालत में दुपट्टे से अपने सर के बालों को ढकना है, ऐसे ही मस्जिद के बाहर भी जब जाए तो वहां भी यही हुक्म है, कोई दूसरा रब वहां का नहीं है। मस्जिद में अगर टखने के नीचे नमाज, रखने के नीचे पैजामा सलवार करना नापसंदीदा है तो मस्जिद के बाहर भी नापसंदीदा है। दोनों जगह का खुदा एक है, दोनों जगह का अल्लाह एक है, अलग अलग रब के नहीं है। लिहाजा ये हुक्म हर जगह के लिए है। इसी तरीके से मस्जिद में आने के हवाले से खवातीन को एक बात और याद रखना चाहिए, मस्जिद या दीगर जगहों पे खुशबू लगा करके घरों से बाहर निकलना खवातीन के लिए कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं
مسجد کے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت کا گزر ہوا، اس عورت نے اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کیے ہوئے تھا، ہوا چل رہی تھی اور ہوا کے جھونکوں سے اس کی خوشبو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک تک پہنچی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، یا امت الجبار، اے جبار کی باجی، اللہ کی بندی، کیا تو مسجد جانے کا ارادہ رکھتی ہے اور تو نے اپنے بدن پر خوشبو مل کے رکھا ہے؟ اس نے کہا میں مسجد جا رہی ہوں، میں نے خوشبو لگایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأۃ خرجت من بیتها متطیبۃ ترید المسجد لم یقبل اللہ صلاتها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی عورت جو اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اپنے بدن کو خوشبوؤں سے معطر کر لیتی ہے، ایسے عورت کی نماز کو اللہ رب العالمین اس وقت قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ واپس گھر نہ جائے اور گھر جا کر کے کپڑا نہیں بدلنا ہے، مکمل طور سے غسل جنابت نہ کر لے، رب العالمین اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر مسجد میں یہ حکم ہے جہاں پاکیزہ لوگ آتے ہیں، جہاں باکردار لوگ آتے ہیں، یہاں پر اگر اتنی سخت ہدایت ہے تو ایسی خواتین جو مسجدوں کے علاوہ بازاروں میں خوشبو لگا کر کے جاتی ہیں، وہ کتنی بڑی لعنت کی مستحق ہوتی ہوں گی اور کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والی ہوتی ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، یہ چند آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو مسجدوں میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور اس میں ہم سے اور آپ سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور ایک شخص مسجد میں آیا، اس شخص کا نام تھا خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گئے اور مسجد کے کونے میں انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پوری نماز جو انہوں نے پڑھی تھی وہ پوری کی پوری نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھی تھی۔ دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بندہ ابھی نماز پڑھ کر کے آیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سلام کیا، آپ فرماتے ہیں جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ بندہ پھر گیا، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گئے، انہوں نے پھر نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس کے بعد گئے پھر پڑھ کر کے آئے بیچارے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے 3 مرتبہ ان کے ساتھ جب کیا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جسے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی اللہ کی قسم اس سے بہتر طریقہ مجھے نماز پڑھنے کا نہیں آتا ہے، لہذا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں کی نمازیں ہیں جو فٹافٹ ہوتی ہیں، سپر فاسٹ، اور ایسی نمازوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تمہاری نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو تم نے ابھی نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھا طریقہ مجھے نماز پڑھنے کا نہیں معلوم ہے، لہذا آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجیے۔ اور نماز کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، اے خلاد بن رافع جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسباغ وضو کرو، مکمل وضو کرو۔ بعض روایتوں میں اسباغ وضو کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ نماز جو ہمیں پڑھنی ہے یہ کھڑے کھڑے پڑھنی ہے،
और नमाज में क़याम करना, खड़े होकर के नमाज पढ़ना ये फर्ज है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारी नमाज नहीं होती है। हम में से बहुत सारे लोग बीमार हैं, मरीज हैं, और ऐसे लोग हैं जो खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते। मेरे भाइयों, उन्हें याद रखना चाहिए कि नमाज की हालत में क़याम करना फर्ज है। जितनी देर तक आदमी क़याम कर सकता है, तो आने लिखा है कि जितनी देर तक आदमी क़याम कर सकता है उतनी देर तक क़याम करे। मिसाल के तौर पर एक इमाम, अगर इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं और उसकी 1 मिनट उन्होंने क़याम किया और आप 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते, 30 सेकंड खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते हैं। लिहाजा कुर्सी पीछे लगा करके 30 सेकंड खड़े रहिए। जब आप इस लायक हो जाए कि आप बैठ ही नहीं सकते, तब जाकर के कुर्सी पर बैठे और उसके बाद रुकू और सजदा जिस अंदाज से है वो किया जाएगा। हम में से कितने ऐसे मरीज हैं जो कुर्सी वाले हैं, और ये कुर्सी वाले पैदल आधा किलोमीटर चल करके आते हैं और मस्जिद में आए तो डायरेक्ट कुर्सी बैठ गए। मेरे भाइयों, अगर ऐसा करते हैं तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज सही नहीं रह जाती। हजरत एक सहाबी रसूल आते हैं, उनका नाम है इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने कहा कानत फी बवासीर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बवासीर की शिकायत है, मैं नमाज कैसे पढ़ूं, बवासीर मुझे, मैं नमाज कैसे पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फसल जो है आप खड़े होकर के नमाज पढ़ो। आपने फरमाया सल्ले काइमन, खड़े होकर के नमाज पढ़ो। फ़इल्लम तस्तते फ़क़ाइदन, अगर खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ करके नमाज पढ़ो। फ़इल्लम तस्तते फ़अला जम्बिन, और अगर बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो लेट करके पहलू टेबल नमाज पढ़ो। लेकिन याद रखो कि नमाज किसी भी सूरत में मर्दों की माफ नहीं है। मर्दों की नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। खवातीन की 2 हालतें हैं जिसमें नमाज माफ है, एक हालत निफास और एक मकरूह अय्याम। मर्दों की नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, इल्ला कि आदमी मर जाए, मर जाने के बाद नमाज उससे माफ हो जाती है। जिंदगी में कभी उसकी नमाज माफ नहीं है, लिहाजा इंसान खड़े होकर के नमाज पढ़े। दूसरी चीज, जब नमाज में पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते वक्त हमें गलती और करते हैं, हमें से बहुत सारे लोग करते हैं, सारे लोग नहीं करते, और वो ये है कि जब नमाज के लिए हम खड़े हों तो हमें नियत करना है। अब नियत करते वक्त क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते वक्त नियत करते हैं अल्फाज से नियत करते हैं। याद रखना चाहिए कि अल्फाज से नियत करना किसी सही हदीस तो बहुत दूर की बात है, किसी ज़ईफ हदीस से भी अल्फाज साबित नहीं है नमाज की नियत के। नमाज का जो महल है, नियत का जो महल है वो दिल है। आदमी दिल में सोचे कि मैं फला नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, आज जुमा की नमाज को ये दिल में सोच लें कि मैं जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, बस यही नियत हो गई। लिहाजा कोई भी अल्फाज, चाहे वो अल्फाज कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, अहले इल्म ने उसे बातिल करार दिया है, बिदअत करार दिया है। इमाम इब्न अबिल इज़्ज़ अल-हनफी रहमहुल्लाह, मसलकन ये हनफी थे, इनकी बड़ी मशहूर किताब है अल-अक़ीदतु तहाविया जो मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई जाती है। ये कहते हैं लम यकुल अहदुन मिनल अइम्मतिल अर्बा वला शाफ़िई वला गैरहु बिइख्तिलाफ़ि तलफ़्फ़ुज़ बिन्निया। कहते हैं कि अइम्मे अरबा में से किसी ने, इमाम शाफ़िई ने भी, इमाम शाफ़िई के अलावा दूसरे लोगों ने भी अल्फाज के साथ नियत करने को शर्त नहीं करार दिया है। महल्लुहा अल-क़ल्ब, नियत का जो महल है वो दिल है। लेकिन हम में से हम गलतियां कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नियत के अल्फाज करते हुए कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूँ सलाते जुमा की 2 रकात फर्द, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा किबले की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह के जो अल्फाज है मेरे भाई, ये बिदात है, और बिदात ये इंसान को गुमराही में डाल देती है, और गुमराही ये इंसान को जहन्नम में लेकर के जाती है। इसलिए हमें अपनी नमाजों के सिलसिले में सोचना ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे।
नमाज के हवाले से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तफ्तिहु सलात बित्तकबीर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज की इब्तिदा करते थे तो तकबीर से करते थे, अल्लाहु अकबर से करते थे। अल्लाहु अकबर कह करके उसके बाद हाथों को बांध लेते थे। लिहाजा हमको भी नमाज अल्लाहु अकबर से पहले ज़बान से किसी भी कलमे की अदायगी की जरूरत नहीं है, उसे नहीं अदा करना चाहिए। उसके बाद इसबाग़ वुज़ू है, मुकम्मल आदमी वुज़ू करे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खल्लाद बिन राफ़ी को नमाज का तरीका सिखाते हुए कहा, तकब्बिर, अल्लाहु अकबर कहो। अब अल्लाहु अकबर कहते वक्त हमें क्या करना है? अल्लाहु अकबर जब हम कहेंगे तो हम दोनों हाथों को उठाएंगे। बहुत सारे लोग हमें से हैं जो गलती की बुनियाद पर हाथ को बहुत ऊपर तक लेकर के जाते हैं। अबू हुमैदा सादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कुन्तु अहब्बुकुम लिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुमने सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को याद रखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। और मैंने ये देखा है, काना यरफउ यदैहि हिज़ाअ मनकिबैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाहु अकबर कहते थे तो अपने हाथों को अपने मोढ़ों के मुकाबिल ले जाते थे, मोढ़े के मुकाबिल में लेकर के जाते थे अपने हाथों को। और एक रिवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को कान की इस लौ पर लेकर के जाते थे। दोनों रिवायतों पर अमल करने का तरीका ये होगा कि हाथ को हम ऐसा उठाएं कि उंगलियों का ये आखिरी हिस्सा कान के लौ के मुकाबिल में आ जाए। छूना नहीं है इसको, कान के लौ के मुखेदा का लग जाता है, कान के लौ के मुकाबिल में आ जाए। और ये जो कलाई है, ये कलाई इंसान के मोढ़े तक, कंधे तक, कंधे के मुकाबिल में आ जाए। यही है अल्लाहु अकबर। और अल्लाहु अकबर कह करके और उसके बाद आदमी हाथ को बांधेगा। हाथ कैसे बांधेगा? हजरत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत बताती है, कहते हैं, सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवदा यदहु यमना अला यदिही युसरा अला सदरिही। हजरत वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है सन 9 हिजरी में, ये फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। फवदा यदहु यमना अला यदिही युसरा अला सदरिही, आपने अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ पर, अपने सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को रखा। अब वो हाथ रखने की जो कैफियत है वो हदीस में 3 तरीका बताया गया है। हदीस से 3 तरीका साबित है, वो 3 तरीका हमें और आपको याद रखना चाहिए। पहला तरीका तो ये है कि ये जो हथेली आपकी है, जरा गौर से देखें, ये जो हथेली है, ये हथेली आपकी इस हथेली पर आ जाए इस तरीके से करके। उसके बाद सीने पर रखना, सीना यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, लिहाजा यहाँ इस तरीके से हाथ रखा जाएगा। और उसके बाद दूसरा तरीका जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित है, यशुद्दु बैनहुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को रखते थे, उसके बाद इसको मजबूती से ऐसे पकड़ करके रखते थे। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो तरीका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़िरा पर रखते थे, इस तरीके से रखते थे ज़िरा पर, और इस तरीके से सीने पर। आदमी 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों से आदमी क्या करे, अपने हाथ को अपने हाथ जो है दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रख करके और उसके बाद सीने पर आदमी अपने हाथ को रख ले। इसी तरीके से हजरत जब आदमी अल्लाह अकबर कह करके उसने हाथ को बांध लिया, तो हाथ बांधने के बाद क्या करे? एक दूसरी रिवायत है, इज़ा कब्बरा लिस्सलाति सकता हुनैहतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाहु अकबर कह करके अपने हाथ को सीने पर बांधते थे, तो सीने पर हाथ बांधने के बाद क्या कहते थे? दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ये मुकम्मल दुआ, या सुब्हानक अल्लाहुम्मा, या एक दुआ और है। इसी तरीके से कई दुआएं हैं, चाहे तो आप एक दुआ पढ़े, चाहे सारी दुआएं पढ़ने की हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके बाद थोड़ी देर खामोश रह करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को पढ़ते थे। लिहाजा इसी तरीके से हमें और आपको नमाजों को पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जब अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ लेते थे,
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, हजरत खल्लाद के वाक़े को, तुम अक़रा मा तयस्सरा माका मिनल कुरान। हजरत खालिद बिन राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपने बताया कि फिर तुम पढ़ो कुरान में से जो तुम्हारे लिए आसान है, जो आसानी से तुम पढ़ सकते हो। अब इस आसान से कौन सी सूरत मुराद है? अहले इल्म ने लिखा है कि कुरान हकीम के अंदर जितनी सूरतें हैं उन सारी सूरतों में सबसे ज्यादा आसान याद करने के एतबार से आसान सूरत सूरतुल फातिहा है। लिहाजा सूरह फातिहा को पढ़ो। और अगर हम अहले इल्म की इस बात को न भी माने तो अबू दाऊद की रवायत है, अबू दाऊद की रवायत में बाकायदा वजाहत है, तुम अक़रा बिउम्मुल किताब, उसके बाद तुम उम्मुल किताब यानी सूरतुल फातिहा को पढ़ो। सूरतुल फातिहा के बाद फिर पढ़ो जो अल्लाह तबारक व तआला चाहे। और ये याद रखना चाहिए कि आदमी अकेले नमाज पढ़ रहा हो या जमात के साथ नमाज पढ़ रहा हो, हिदायत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताती है कि अगर कोई बंदा सूरह फातिहा को नमाज के अंदर नहीं पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होती है। सूरतुल फातिहा का पढ़ना फर्ज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, ऐसे आदमी की नमाज नहीं होती है जिसने फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा है। लिहाजा आदमी जमात के साथ पढ़े, तन्हा पढ़े तो भी उसे सूरह फातिहा का पढ़ना जरूरी है। और जमात वाले में वजाहत दूसरे रिवायत से कर दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए अपने मुसल्लियों की तरफ, और मुतवज्जे होने के बाद कहा, लअल्लकुम तक़रऊना, शायद कि तुम लोग मेरे पीछे कुछ पढ़ रहे थे। सहाबा ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, हम आपकी तरफ को दोहरा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़रऊ इल्ला बिउम्मिल कुरान, याद रखो जब मेरे साथ जमात से नमाज पढ़ो तो सूरह फातिहा के अलावा और कुछ मत कहो। मालूम हुआ कि आदमी तन्हा नमाज पढ़े तो भी, जमात के साथ नमाज पढ़े तो भी उसे सूरह फातिहा पढ़ना उसके लिए जरूरी है। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलातन लन यक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताबी वहिया ख़िदाजुन ख़िदाजुन ख़िदाजुन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा शख्स जिसने नमाज पढ़ लिया लेकिन उसने अपनी नमाज में सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, वहिया ख़िदाजुन, तो वो नाक़िस है, अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार कह देना काफी था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन मरतबा कहा है। और हम और आप जानते हैं कि खिदाज किसको कहते हैं? खिदाज कहते हैं ऐसे नौमौलूद जानवर के बच्चे को, चाहे वो बकरी का हो, चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो ऊँटनी का बच्चा हो, वो पैदा हुआ लेकिन उसके आधा दुरुस्त नहीं है, या तो कान कटा हुआ है, या मुंडी कटी हुई है, या पैर उसका जो है अधूरा है। मतलब ये कि वो बच्चा नाक़िस है, अधूरा है। और वही लफ्ज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है कि जो आदमी नमाज पढ़े और उस नमाज के अंदर सूरह फातिहा को नहीं पढ़ता है, ऐसे आदमी की नमाज अधूरी है, अधूरी है, नाक़िस है, नाक़िस है। लिहाजा हमें और आपको और हर मुसलमान को अपनी नमाजों की फिक्र करना चाहिए। अब सूरह फातिहा भी अगर बंदे को याद नहीं है, अभी नया नया मुसलमान हुआ है, या खानदानी मुसलमान था और ऐसा मुसलमान था कि उसे कुछ खबर ही नहीं थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बहुत देर में उसे तौफीक हुई कि उसे नमाज पढ़ना चाहिए, वरना जिंदगी गुजार रहा था जानवरों की तरह से। बचपन में भी कुछ नहीं पढ़ा, वालिदैन ने भी उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। अब उसे कुरान हकीम की कोई सूरत याद नहीं है, क्या करेगा वो? अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक उसे कुरान नहीं आता है, कुरान की सूरतें उसे याद नहीं है, तब तक अपनी पूरी नमाज में फहमदिल्लाह व कब्बिरहु व हल्लिलहु, अल्हम्दुलिल्लाह तो कह सकता है, बहुत आसान है। अल्लाह अकबर कह सकता है, ये भी बहुत आसान है। ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकता है, ये भी आसान है। लिहाजा इन अज़कार को अपनी नमाजों के अंदर ऐसे आदमी के लिए है जिसे कुरान कुछ भी याद नहीं है, अभी होश आया है
कि जिंदगी में नमाज पढ़ना भी फर्ज है, बचपन में तालीम नहीं हुई है, वालिदैन ने उसकी तरबियत नहीं किया, ऐसे आदमी को कुरान सीखना चाहिए। और जब तक वो कुरान सीख नहीं पाता है, याद नहीं कर पाता है, तब तक इन अस्कार के जरिए अपनी नमाजों को मुकम्मल करे। मेरे भाइयों, अभी तक हमारा मामला सूरह फातिहा तक पहुंचा है और घड़ी की सुई ये कह रही है कि खुतबे को यहाँ पर रोक दिया जाए।